انشاءاللہ کہ عملیات و تعویذات کی حقیقت. قرآن کا فرمان ہے کہ یہ قرآن شفا بھی ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے. یہ قرآن کا ججمنٹ ہے. قرآن کیا ہے؟ شفا بھی ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے. تو شفا کا لفظ استعمال کیا تو ہر مرض کی شفا قرآن میں ہے نہیں؟ اچھا، اب عام آدمی بیمار ہوتا، جنرل طور پہ بیمار ہوا، وہ بیماری کو ٹیسٹ کرنا، بخار ہے، کئی کی بخار، ٹائیفائڈ ہے، ملیریا ہے، نیمونیا ہے، رومینٹک فیور ہے، ڈینگی فیور ہے، کیا ٹی بی ہے، دل کی بخار ہے، سفری کی بخار ہے، سردی کی بخار. خالی بخار میں بولے کیسا ہوگا؟ وہ کس نمونے کی بخار ہے اس کی تشخیص کرنا جسم کے لیے ضروری ہی نہیں کرنا. تو کون کرے گا؟ اس کا ماہر رہنا. مانومیٹر لگا کو چیک کرنے والا ہونا، بی پی کتنی ہے، کیا ہے. تھرمامیٹر رکھو، ٹیمپریچر کتنا ہے وہ دیکھنے والا ہونا. یورین ٹیسٹ کرنے والا ہونا کہ شوگر کتنے پرسنٹ ہے، کیا ہے کیا نہیں بات. خون چیک کرنا، کتنا خون کی کمی ہے، کتنا ہے اس کے اندر، کیا کیا. اس وقت بھی تشخیص بولتے ہے نا. یہ سب بھی پہلے ٹیسٹ ہونا. ٹیسٹنگ پورا ہوا پیچھے ڈاکٹر کیا کرتا؟ صحیح نسخہ دیتا. ارے اتنا بی پی ہے، اتنا شوگر ہے، اتنا اسے کیا ہے، اسے فلاں دوا اتنی دینا، ہوتی دینا. تو ٹیسٹ کر کو دوا دیا تو دوا جلدی اثر کرتی. کیا ہے کہ انداز ان سے ٹیسٹنگ معلوم نہیں، ایکس رے دیکھ نہیں سکتا، اسکیننگ معلوم نہیں، ایکس رے معلوم نہیں، ٹیسٹنگ معلوم نہیں، میٹر معلوم نہیں، کیا بھی نہیں معلوم. بخار کا تو کون سی سردی والے کو سردی کی گولی دے دیا تو ریئیکشن. تو گویا علاج کرنے والا، جسم کا علاج کرنے والا ہر طرح سے ماسٹر ہو. آنکھ والا آنکھ کا اسپیشلسٹ الگ، ایم بی بی ایس جنرل ڈاکٹر، ایم ڈی فزیشین، ایم ایس سرجن. وہ سرجنا میں بھی کیٹیگریز ہیں. ہڈیاں کا سرجن، آرتھوپیڈک سرجن، فزیشین الگ ہے، سرجن الگ ہے، آنکھ کا ڈاکٹر الگ ہے، کان کا الگ ہے نا، ہڈیاں کا الگ ہے، کیا بات، یورین کا الگ ہے، کڈنی کا الگ ہے، ہارٹ کا الگ ہے. انسان کے اعضاء میں، جسم میں جتنے اعضاء ہیں وسطوں کا ماہر الگ الگ ہے. آنکھ والا بولیں گا بھائی مجھے آنکھ کا کر سکتا ہوں، مجھے ہارٹ کا معلوم نہیں. ہارٹ والا بولیں گا میں ہارٹ کا کرتا ہوں، مجھے ہارٹ کا معلوم نہیں. تو ڈاکٹروں میں بھی ہر ایک کو ایک ایک چیز کا ماہر ماسٹر ہے. انہیں ٹریننگ لے کو رہتا. کیا ہوا؟ 5 سال کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھ کو ڈاکٹر بنا سو. خالی کتاباں پڑھ کو ڈاکٹر بنا تو نہیں چلتا. آپریشن کرنا، دیکھنا، مردے کو کاٹنا، اندر کیا گئے، پھیپڑا کیا، جگر کیا، لیور کیا، یہ پورے تحقیقات کر کو اس کے بعد میں انہیں میٹر میں چیک کرا تو اتنا شوگر رہا تو اسے کیا دینا، کتنا ہے کیا نہیں، ڈیٹیل علاج ہو سکتا. یہ جسم کا. اور جسمانی علاج لازم. کوئی طاقت و قوت رکھتے ہوئے اے اللہ علیہ میں کہیں کو علاج کروں بول کو نہیں کرنا، نا شکرا ہوں گا. دوا کھانا سنت رسول ہے. حضور کی دعا ہے. سنا مکی کا پتا، سنا مکی ہے نا، گیسٹرک کے لیے، اس کے لیے، پیشش کے لیے وہ کھائے تو ہو جاتے. سرکار دعا کرے طب نبی میں. شہد کے لیے دعا کرے، کھجور کے لیے دعا کرے. تو حضور بھی دوا کھائے ہیں. کئی کو کھائے قیامت کی صبح تک میری امت یہ سمجھ کو دوا کھائے کہ میری سنت ہے. یہ حماقت نہیں کرنا. بخار ہے تو لے گئی تو جاتے لے، میں دوا نہیں کھاتا، نکو تو دوا کھاؤ. کو جگہ نارمل رہا تو عبادت کریں گا، نارمل رہا تو ذکر کریں گا. یہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے، کیا ذکر کریں گا؟ تیرے پیٹ کے درد کو سنا مکی کھا لے. سنا مکی کا پتا چاکو پیا تو بیماری کی تو نارمل بناتے عبادت کر سکتا ہے، ریاضت کر سکتا ہے، ذکر کر سکتا. جیسا جسم بیمار ہوا تو جسم کے ڈاکٹر کے پاس جانا، کوئی اس کا ماہر ہے کہ اسی کے پاس گئے تو اس کا علاج صحیح ہوتا. بغیر تشخیص کے نسخہ تجویز نہیں کر سکتے. فرسٹ ڈائگنوز کرنا بھی کیا ہے بیماری کا، تشخیص پہلے ہو، بعد میں علاج کو صحیح ٹریٹمنٹ ہے. ویسا کیسا جسم بیمار کی روح بھی بیمار ہوتا.
इंसान में रूह भी है। जिसम बीमार हुआ तो टेस्टिंग करे ले। अब रूहानी अमराज है, अब रूहानी अमराज की भी टेस्ट करने वाला मास्टर होना। क्या हुजूर की हदीस है, अन नजर बरहकुन, नजर का लगना हक है। हुजूर फरमाए नजर का लगना हक है। अब नजर लगी इसे तो कैसा मालूम होगा भाई इसके अंदर कोई बला बदतर है, जैसे कोई जादू कराया, कैसे मालूम करेंगे आप इसे जादू है? कि रूहानी बीमारी बता रहा हूं, वो बीमारी डॉक्टर की मीटर की जरिए मालूम नहीं यार, ये बीमारी कैसे मालूम होना? नजर है क्या बला बदतर है कि जादू है, क्या कराएं क्या नहीं, इसकी भी तहकीक होना नहीं। तो इसके लिए बुजुर्गों ने तरीका भी बताया और हदीस में भी है। तो कैसा बीपी चेक करने को, शुगर चेक करने को मीटरा है कि वैसा ये चीजें चेक करने के लिए भी 3 तरह का इल्म सीखना हर आमिल को लाजिम है। जैसे डॉक्टर को बीपी चेक करने का सीखना लाजिम है क्या नहीं? बीमारी चेक करने का सीखना लाजिम है। तो उसी तरह रूहानी इलाज करने वाले के लिए, अमलियात करने वाले के लिए, तावीज परीता देने वाले के लिए वो इल्म का टेस्टिंग सीखना जरूरी है कि इसे क्या हुआ है, क्यों परेशान है, कारोबार क्यों डाउन हो गया, घर में आए तो भूल गया था, बाहर गए तो बेचैन का था, ये क्या क्या की मुसीबतें हैं, ये क्या है? इसके लिए भी टेस्टा है, रूहानी टेस्टा। वो क्या है? हदीस के एतबार से 3 है टेस्टिंग। शरीयत में 3 टेस्टिंग है। वो 3 टेस्ट कर को इन्हें तावीज की पलिता की देना सो। और टेस्टिंग में कौन सा टेस्टिंग? पहला समझने के लिए बोलो, इल्मे जफर। इल्मे जफर ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में नाजिल हुआ, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के जमाने में नाजिल हुआ। तो किसी को पहले चेक करोगे, फाल फलाते बोलते ना, टेस्टिंग इज इक्वल टू फाल। पहले फाल खोल को देखो, हजरत बहुत इलाज कराया, टेस्टा सब भी नॉर्मल है क्या, मगर मुझे कहीं को भी दवा कितना खातिर जा रहा नहीं, इधर फाल खोलो कहता, फाल इज इक्वल टू टेस्ट, का स्पिरिचुअल टेस्ट, रूहानी टेस्टिंग। मेरे में क्या है जरा चेक करो तो ये क्या था? उसमें पहला क्या बता रहा हूं, इल्मे जफर। इल्मे जफर का सबूत हदीस से है, मगर उसका मास्टर बनना नहीं, सीखना ना। इल्मे जफर इज इक्वल टू न्यूमरोलॉजी, इल्मुल आदात, आदात का इल्म। आदात है जैसा अलीफ कुरान का जाहिरी है, एक कुरान का बाकी है इसका, बे 2 नंबर होता है ना, बे ऊपर है, ये कुरान का जाहिरी, मगर उसका आदत बातिनी 2। तो कुरान की जैसा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के 786 का था, 780 बच्चे उसके अदद है, अदद की ताकत भी है, समझ में आ रही बात? हदीस के सबूत। तो ये इल्मे जफर सीखना उन्हें पहले इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला ने जिसे क्लियर से समझा दिया, जो जो खामियां थे पूरा कर दिया। तो इल्मे जफर 2 तरीके का, एक तो मकतूबी, दूसरा मलफूजी। मकतूबी क्या? लिखे सो, अलीफ लिखा में, अलीफ एक ही चल, जीम, जीम का लिखा, मकतूबी 3 उसकी अदद, ये मकतूबी अदद। मलफूजी अलग है, मुंह से मैं बोला अलीफ, अलीफ का तो अलीफ का 1, लाम का 30, फे का 80, कितने रखना? 111 है। अलीफ का मकतूबी अदद 1 है और मलफूजी अल्फाज से जो निकला 111 है। तो इल्मे जफर में मकतूबी भी जानना, मलफूजी भी जानना। जानने के बाद कोई आ गया, साहब बहुत परेशान हूं, जरा देखो मेरा फाल करना, उसका नाम लेना, उसके नाम की अदद निकालना, उसकी मां का नाम लेना, मां की अदद निकालना, किस दिन देखने को आया फाल, उस दिन का अदद निकाल को हिसाब करना। जो तरीका है, 3 से करना, 4 से करना, 5 से करना, 7 से करना, हर एक का अलग अलग उसूल है। क्या बात? देखते जैसा अक्सर तौर पे देखने वाले
کیا کرتے 4 سے تقسیم کرتے. ایک نیچے عدد بچا تو ڈیوائڈ کرنے کے بعد بیرونی پریشانی ہے تجھے. 2 بچے تو انٹرنل اندرونی پریشان ہے تو کیا کہ لگا لیا دل کو. 3 بچے تو آسیبی خلل کیا کہ ہوا کا اثر ہوا جھپک ہوا ہے. 0 بچ گیا تو کرائے کرتوت ہے. یہ علم جفر سے بزرگاں جو نکالے سو طریقہ ٹیسٹنگ کا یہ بھی ایک فارمولا اسے بولتے علم جفر. تو تائزہ سیکھنے والا پہلے جان کے اسے ہے کیا. ایک ہے علم رمل. مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی علم رمل پر کتاب لکھے. علم جفر پر ماسٹر نہ ہو. شمع شبستان رضا آج کل حرامی کے پاس کتاب اس میں انہوں نے کیا لکھتی سب سے بہتر اور اچھا فعال ہے تو علم رمل لکھا. مگر اس میں علم رمل کے خالی ٹکڑے رکھے ہنکیا مجھ کے رکھ نشانی وہ نہیں. علم رمل دانیال علیہ السلام کو جبریل کو سکھائے تو علم رمل معجزہ ہے ایک نبی کا. رمل ریت کو بولتے بالو کو بولتے. 4 انگلیاں رکھو بیٹھے یعنی کیا 4 سے پہلا آتشی بادی آبی خاکی ہے نا 4 انگلیاں رکھے. 4 سے زائچے بنائے 16 کنڈلی میں زائچہ بنانا. آتشی کا انگار کا بادی ہوا کا آبی پانی کا خاکی مٹی کا. 4 عناصر سے انسان کے وجود میں ہمیں اس کے 16 ذائچے بنائے. کون دانیال علیہ السلام کو جبریل بتائے تھے. اب ہونے کے بعد اور تمہیں اب تمہارا اگلے لیے کنڈلی میں نکالنا پہلے ذائچہ انگلے کو اس کو بنانے کا طریقہ ہے. 2 طریقے سے علم رمل کی فعال دیکھی جاتی ہے. علم رمل کو یہ جو نبی کا معجزہ ہے حدیث میں ہے اس کا ٹیسٹ کر کو دیکھنا کیسا کرنا. اس کے 2 طریقے ہیں. پہلا طریقہ نکات کا. نکات کا طریقہ دم پکڑ کو ڈالا. کب دم رک گیا 1 نقطہ دم پکڑ کو ڈالا. 700 ہونے کے بعد خوص بنانا. یہ نقطہ کو ملا کو سب کرنے کے بعد مائنس پلس پلس مائنس 2 مائنس از اکول ٹو پلس ہوتا مائنس پلس از اکول ٹو مائنس ہوتا. یہ 16 ذائچے بنانا. بنانے کے بعد جب وہ کون سے خانے میں کیا آیا کی وہ دیکھ لینا. اچھا 6 گھر میں وہ آیا تو مائنس مائنس کیا ہوتا 4 مائنس آیا تو 4 پلس آیا تو وہ ذائچہ بنانے کے بعد نیچے ڈیٹیل رہتا. اسے بخار ہے بیماری ہے کرتوت ہے جادو ہے منتر ہے. یہ بھی ایک ٹیسٹ علم رمل سے بھی فعال نامہ سیکھنا. ایک طریقہ. دوسرا خورا دال کو خورادان لکھنے کے بعد نکالنا. نکالنے کے بعد اس کی کنڈلی بنانا جائزہ لینا ہے نا. ذائچہ بنانے کے بعد ذائچے میں دیکھنا کہ کون سے گھر میں کیا ہے. وہ کیا ہوتا ہے گھر نحوس بھی رہتا ساتھ بھی رہتا. وہ دیکھ کو چیک کر کو اس کی بیماری کا علاج کرنا علم رمل. آج لاکھوں میں 1 جنے کو چاہتا ہوں. میں دنیا بھر کو دیکھتا ہوں کیا رما آتا کہہ رہتا ہے جی حضرت ہمارے گھر کی دادا وہ ایسے کرتا ہوں. میں گلبرگے میں جب تک تھا شاہباز میں تھا بھنوتی زیادہ جادو علم رمل کا میں ماسٹر. بڑے بڑے بمنا پنڈت آتے تھے مٹکے سوامے صاحب علم رمل ہم نے سکھا ہوتا. ایسا سکھانا پڑتا نہیں ہے لیکن نبی کا معجزہ ہے. تو علم رمل حدیث سے ثبوت کہ نبی کا معجزہ ٹیسٹنگ کرنے کا. اگر علم رمل سے کسی کی فعال دیکھنا ڈیٹیل بولے تو کم سے کم 1 گھنٹہ لگتا. ایک آدمی کا ہر قسم کے سوال کا جواب انہیں کیا سوال کرتا کہ اس کا جواب علم رمل سے ملے گا فعال سے. مگر 5-10 منٹ کا دیکھو فعال نامہ 1 گھنٹہ کم سے کم. ٹیسٹنگ بڑا اسٹرانگ ہو سمجھ رہی کہ ہمارے ٹیسٹ کرے سر کا باری سی باری رکھ بھی دیکھ کو چیک کرنا نہیں کیا بھاگ کہاں گھٹ پڑی گی تو ہمارے ٹیسٹنگ رہے سر کا علم رمل. تو علم رمل کے عامل کو جاننا ضروری. علم جفر علم رمل یہ 2 بھی نبیوں کے معجزے. اس کے بعد علم نجوم اسٹرالوجی جوتش. سب سے پہلے مسلمانوں نے اس کو سکھایا.
तो हिंदुस्तान को जब मुसलमान आए तो यहाँ के अहले हुनूर ब्राह्मण उससे ओढ़ना बिछौना बना दिया, मुसलमान छोड़ दिए उसे ओढ़ना बिछौना बना दिया। ऐसा कई लोग हैं, उन्हें क्या समझते हैं, हमना चाहता सो ये सब भी लग्न पत्रिका, जन्म कुंडली, सितारा देखना, नक्षत्र कुंडली का हमना चाहता सो, उसके बगैर चारा नहीं। बम्बना में बाप भी बेटे को जल्दी सिखाता नहीं, इन्हें रिटायर हो को बुढ़ा वापस बेटे को बताता, इन्हें कहा तो देख लिया 23 साल तो 100 बताता, मगर ये फट नहीं बताता कुंडली डालने का पैसा। मंत्रालय हमारे आंध्रा में है स्वामी, अब आदमी में मेरी दुकान थी मिर्ची की, सामने प्रेस था बमन्ना का, उन्हें एक स्टफिंग तैयार करता, कब वो उगादी को हिंदुओं का पंचानन तैयार करने में आता। उसके शागिर्द बोले अरे ये हजरत भी कुंडली डालती, अब बच्चा पैदा हुआ नहीं बस कुंडली डाल दो, जन्म कुंडली कौन से नक्षत्र में पैदा हुआ, कौन से चरण में पैदा हुआ, कितने खिदम में पैदा हुआ, कुंडली में राहु कहां था, केतु कहां था, शनि कहां था, मरी कहां था, कुजा कहां था, मुश्तरी कहां था, जुपिटर कहां था, कितनी दूरी पर है, सितारों में भी दोस्त सितारा कौन है, दुश्मन सितारा कौन है। ये टाइम को ये बच्चा ग्रह युद्ध डाला जाता है, इस सितारे की उम्र 19 साल है, शनि की उम्र 19 साल है, 19 साल तक इसके अंदर कैफियत रहेंगी। गुरु की अरे मुश्तरी की उम्र 16 साल की है, केतु की 7 साल की है, लंब के राहु के 18 साल की है। ये पूरी कुंडली के नुजूम की मैं भी पैदा देता हूँ। वो तो बच्चा पैदा बमना बंडर हो गया हमारा मंत्रालय का, इस पर बताता है कि सितारा कौन कहां रहेगा। अब बैठे ना हुई, अब जो बता राहु कुंडली में कहां है राहु, राहु कहां है, शनि कहां है, केतु कहां है, कुजा कहां है। अब कुंडली में बताना कौन से घर में है और कौन सी सितारे से मिलको है। सितारे में भी दोस्ती सितारे अलग, दुश्मन सितारे अलग। इनमें नजूम बोल रहा हूं मैं, एस्ट्रोलॉजी बोल रहा हूं मैं। तो इस वास्ते ये इलम भी जानना, कई को तावीज लिखना तो कौन सी टेबो कौन सी तावीज लिखना। मोहब्बत की तावीज नहुस औकात में नहीं लिखना, सात अच्छे औकात में लिखना। दुश्मनी की तावीज नहुस औकात में लिखना। तावीज लिखने की भी टाइमिंग जानना, उन्हें कौन से टाइम पर कौन सी तावीज लिखना। तो तावीज लिखने का तरीका क्या ना, पकाने का सीख भाई, पका सो क्या खाता, कौन सी किताब में लिखी तो जब को दिया तो होटल में खाया का। अरे तू तैयार कर तावीज, तू तैयार कर, सामने वाला आया उसका नाम ले, अदद ले, क्यों बीमार है, उसके अंदर क्या ज्यादा गर्मी चढ़ी क्या सर्दी चढ़ी, देख ले वो कौन से हुर्फों का शिकार है। तो कुरान में 28 हुरूफ है, अल्फाबेट्स अरबी के हुर्फे थे 28 है। पूरा कुरान ये 28 हुर्फों को 600 28 हुरूफ छोड़ो कुरानी से ना, तब यज्ञ करेंगे तारीफ नामिन जालिकुल किताब ला रहा बस सब वो हुर्फा 28 हुर्फा पूरे कुरान घूम रही। तो 28 हुर्फा की भी सित्ता लगे, आतिशी बादी खाजागी, आग के सिफत वाला बादी कैसा, आहतम फशज 7 हुरूफ है ये आतिशी आग की सिफत वाले हुर्फा। बोयन सतज ये बादी के आतम फशज बोयन सतज जश कश कश ये क्या है आदि तुखलक मुका ये खाकी। तो कुरान में भी जो हुर्फा है नहीं, आतिशी कौन से, बादी कौन से, खाकी कौन से, अभी ये हुर्फा की सिफ्ता नहीं जाना तो इसे सर्दी रहेगी तो सर्दी के हुर्फा लिखो नहीं देना, गर्मी की ताबीज देना, गर्मी वाले को सर्दी की देना, ये सब सीखना ना। भी टैबलेट कौन सी देख पड़ा तो रिएक्शन हुआ तो ताबीज में भी अकसाम है, कौन सी ताबीज कब देना, कैसा देना, इसको बुजुर्गान दीन ने भी इस्तेमाल किया। रूहानी तावीज़ा इस्तेमाल करे बड़े बड़े बुजुर्ग जैसा के पूरी दुनिया में सबसे बड़े इमाम 6 हिजरी के अम्बिया के इमाम माने जाते हैं हजरत इमाम बूनी रहमतुल्लाह। इमाम बूनी रहमतुल्लाह अलैह 600 हिजरी के, तो आज को 800 साल पहले गुजरे। उनकी मशहूर मारूफ किताब शमशुल मुअर्रिफुल कुबरा अरबी में लिखे, सुनो, पूरे अरब कंट्री से फेमस अमलियात की किताब। इमाम बूनी रहमतुल्लाह ने एक एक हुरूफ की ऐसी तहकीक लिखे, ऐसी तहकीक लिखे, कराची से उर्दू में शायद भी, अरबी में ओरिजिनल किताब। मैं तो पढ़ तो दंग हो गया। लफ्ज दाल पर
دال کے بارے میں کہتا لکھی اللہ اکبر، ایک ایک حروف کے تاثیر کون امام بونی اتھارٹی مین پورے ورلڈ میں انبیاء کے اتھارٹی تعویذات کے حضرت امام بونی رحمت اللہ علیہ عربی میں. اور اس کے بعد ہمارے سلسلے کے گزر حضرت محمد غوث گولیاری رحمت اللہ علیہ جو ناگور خادر ولی رحمت اللہ درگاہ ان کے پیر محمد غوث گولیاری رحمت اللہ علیہ ان کے پیر کن کے ناگور خادر ولی کے پیر محمد غوث گولیاری رحمت اللہ علیہ شتاری سلسلے کے وہ ہمارے شیدری میں ہے. ان کی مشہور کتاب عملیات کی تعویذات کی پلیتوں کی موکلات کی جنات کی وہ کتاب ہے جواہر خمسہ ہمارے سلسلے کی. اکبر بادشاہ کے زمانے کے اکبر بادشاہ ان کا مرید تھا. اکبر بادشاہ محمد غوث گولیاری کا مرید بنا تھا. اس دور کے بزرگ نے عملیات کی کتاب لکھی، وہ کتاب کا نام جواہر خمسہ. دوسرے ہمارے سلسلے کے بزرگ جو مشہور ہیں انڈیا میں حضرت شیخ کلیم اللہ جہاں آبادی رحمۃ اللہ. شیخ کلیم اللہ جہاں آبادی جو دلی کی جامع مسجد کے پاس ہے، مشہور درگاہ جہاں ماہنامہ آستانہ نکلتا تھا. شیخ کلیم اللہ جہاں آبادی کو ہمارے سلسلے کے جیسا حیدرآباد میں درگاہ مشہور ہے درگاہ یوسفین نامپلی میں یوسف بابا شریف بابا کے پیر معمولی نہیں ہے نا. تو شیخ کلیم اللہ جہاں آبادی رحمت اللہ علیہ دلی کی جامع مسجد کے پاس آپ کی مزار ہے. ان کی مشہور تعویذوں کی کتاب عملیات کی کتاب جو ان کے تجربات تھے مجرب تھے پریکٹیکل جو کرتے تھے وہ کتاب کا نام ہے مرخے کلیمی. مرخے تو شیخ کلیم اللہ جہاں آبادی ہمارے پیر سلسلے کے شجرے کے چشتیہ کمالیا کے انہوں نے بھی تعویذ دیا عملیات کریا موکلوں کو بتایا جناتوں کو بتایا ہر حروف کے بارے میں لکھے. کہ ناجائز نہیں بول رہا ہوں میں بزرگا کرے سو بول رہا ہوں. ابھی زیادہ چلے جاؤ اور ایک بزرگ جو ہمارے سلسلے کے جو پوری دنیا میں مشہور حضرت ابو الحسن شاذلی پوری دنیا جن کو امام مانتی ہے ابو الحسن یہ بھی 600 ہجری کے بزرگ ہیں. ان کی مشہور عملیات دعائے حفظ البحر جیسے ہم رات دن پڑھتے ہیں وظیفہ ہمارا رات دن کا اس کے بھی ہر حروف کے بہت بڑے اس میں لاتا ہے. کون عالم فخری صاحب ان پنصور پاکستانی میں لکھتی حفظ البحر کے بارے میں کیا لکھ رہی. اگر کوئی کیا نیت سے حفظ البحر پڑھتا کی کیا بات ہزاروں جنات ہزاروں فرشتے ہزاروں موکلات انہیں کیا حکم لاتا کہ پورے جا کو وہ کام کر کو آتے جیسا کہ شہد کے مکھیوں کے چھتے کچھ تو حرکت کرے تو کیسا مکھیاں اڑ کو جا کو کاٹتی گی ویسا یہ کام کرتے ہزاروں. تو لہذا حفظ البحر کے جناتا موکلا فرشتے ہزاروں ہیں. بخل عالم فخری پاکستان کے مشہور بزرگ ان کا اسٹیٹمنٹ تو وہ کتاب ہے. اور اس کے علاوہ آج کے دور میں اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ بریلی شریف کے اعلی حضرت امام انہوں نے بھی تعویذات کو لکھا. ان کے پریکٹیکل تجربات کو ان کے خادموں نے اقبال احمد نوری صاحب ہے نا جو مفتی اعظم کے خلیفہ ہے اعلی حضرت کے تعویذوں کو پلیتان کو مفتی اعظم کے تعویذ پلیتان کو جمع کر کو آج کے دور میں کتاب لکھے شمع شبیستان رضا. ہر عالم کے پاس وہ کتاب یو پی بہار والا تو اس وقت گزرا کہاں گے تو کتاب پر تعویذہ لکھنا ڈرانا دھمکانا پیٹ پالنا. تو تعویذ لکھنا برا نہیں ہے. بزرگاں لکھی اولیاء لکھی مفتی اعظم تو بیٹھے بیٹھے تعویذہ لکھتے تھے بیٹھے بیٹھے تعویذہ لکھتے تھے ہے کیا نہیں با. ہمارے خطیب کا بھی تعویذ ہے نائب رسول بھی تعویذ دے شاہ رفیع الدین خنداری بھی تعویذ دی. تعویذ دینا حرام نہیں ہے تعویذ دے سکتے کیوں اس کی روحانی طاقت کو پورا کرنے کے لیے. کیوں یہ دنیا عالم اسباب ہے. یہ دنیا کیا عالم اسباب ہے. اور سمجھ لے فل گرمی ہو رہی ہے نا
फुल गर्मियों पर क्या करता है, क्या करना बात बेचे नहीं कर तो एसी छोड़ता है। एसी छोड़े तो जरा रिलैक्स मिला उसे। गर्मी तो गई नहीं भाई, गर्मी तो है छे कुदरत की तरफ से, वो है धुपकाला, मगर इससे जरा सुकून मिलने के लिए वो ये सी तावीज रह सका। इंसान परेशान है, बीमार है, फला है, मुसीबत में क्या भी है, मगर तकाजा है ना उसकी वो तकलीफ को दूर करने के लिए थोड़ी देर के लिए तभी, या ज्यादा ठंड लग रही है, बहुत ठंड ठंड कांप रहा है, जरा आग सिलका आग का सेका ले, नहीं क्या तो हीटर ऑन कर, ठंड लगी तो हीटर ऑन का है, अब गर्मी लगी तो एसी ऑन कर। कई पूरे एसी कई पूरे हीटर का सहारा ले रहा है तो ये दुनिया अजबात की दुनिया है। मुझे नॉर्मल रहने का रहा तो गर्मी दूर होना तो एसी होना, एसी के बगैर मैं बैठ सकता नहीं, जरूरत करता एसी इक्वल टू तावीज रह सकता। तेरी रूह को सुकून मिलना तो तावीज पलीता जैसा एसी समझ ले। या बारिश पड़ रहा है, बारिश को तो रोक सकते नहीं ना बाप, अब क्या करना, उधर जाना उधर जाना मेरा जरूरी, मगर बारिश पड़ रहा है तो एक छतरी लग जाओ, आप छतरी तावीज तेरी तकलीफ में क्या ही गए एक तारीख है, छतरी पकड़ ले जा, वो पड़ता सो पानी तेरे को नहीं सका, छतरी को पड़ेंगे तू पार हो जाओ। क्योंकि दुनिया आलम अजबाब है, जैसा एसी हीटर जैसा छतरी एक इंसान की जिस्म की हिफाजत के लिए चीजा है, तो उसी तरह तावीज और फलीता अमलिया भी रूहानी इंसानी सुकून के लिए लाजिम है। मालूम मगर जानकार होना, तावीज लिखने वाला मुत्तकी रहना, परहेजगार रहना, झूठा नहीं रहना, काजिब नहीं रहना, ईमानदार रहना, उसके दिल में इश्क़ रसूल रहना, अल्लाह रसूल का डर रहना। कौन तो फाल खुलाने को आता, क्या कि परेशान कर दो, क्या कि डालने को चिपके चो ए तुझे कराए से करतूत है गता, उन्हें डरता पहले चला वो भरोसा नहीं, ज़ईफ़ुल इत्तिक़ाद शैतान घुस जाता, एक रही का सा मुझे हो तो क्या करना, उसका बंदिश करना जी नकरा को है बंदिश करना, कितना होता 5000, नहीं लो हजरत 5000 नहीं मेरे पास, 2 में काम चला और रंगे लावा, इन्हें झूठ बोल को 2000 लिया, कल खुदा को क्या मुझे कहता, उससे क्या भी तरकोश नहीं है, इन्हें क्या भी नहीं कहता, उन्हें आता क्या तुझे क्या भी आता नहीं कहता, आदत पड़ी क्या बोलता 10 जगह फालाओं खिलाया, क्या कि कौन की करेंगे थे, अपने वाले करेंगे थे, बाहर वाले करेंगे थे, तुम्हें क्या भी नहीं करे ना हजरत, तुमने आता नहीं देखने का था। अभी क्या करना, सबको भी क्या भी नहीं है, भूखा मारता। उसके बाद से झूठ, लानत लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठे का अल्लाह की लानत है, चुटके उसे वहां में डालो। तुझे उंगलाट हुआ है, तुझे कौन की कर रही, तुझे आसिफ का असर है, क्या आगे बोले तो पहले से इसकी अल्लाह रसूल को भरोसा नहीं, विल पावर नहीं, क़ुव्वत इरादी नहीं, घबरा हजरत इतना कि लो मेरी बंदिश करो, घर की बंदिश करो, मुझे क्या भी तावीज़ दो, पलीते दो कहता हूं। पलीता तावीज किसकी असर करती है, तो हदीस है सही बुखारी की कि बंदा नवाफिल के जरिए जब अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है, अल्लाह उसका हाथ बनता है, अल्लाह उसकी जुबान बनता है, हदीस है अल्लाह उसकी आंख बनता है। तो ऐसा बना हुआ पेपर पर क्या लिखने, खाली लकीरदार पर या तो शाबाश कि वो हाथ उसका नहीं अल्लाह का हाथ हो गया। ऐसा अमील जिसका हाथ अल्लाह का हाथ हो जाए, ऐसा फना हो जाए अल्लाह में, फना फिल्लाह बखा बिल्लाह के मकाम पर आ जाए, एक नजर देखे उसकी बला भी चले जाए, जादू भी चले जा, जिन भी चले जा, निगाह वली में वो तासीर देखी, बदल के हजारों की तहदीर। अल्लाह वाले की नजर पड़ी तो जादू भी जाता, बला भी जाती, नजर भी जाता, कराए करतूत भी सब चले जाता है क्या नहीं। तो तावीज़ात भी हक है, अमलियात भी हक है, मैं करने वाला अल्लाह वाला हो, करने वाला झूठ बोल को लोगों का अट्रैक्शन करने वाला नहीं रहना। खाली झुपा पे जाओ पे बड़े कौन आता जी, जरा सगरे गिदरे दाल को कोई जरा ड्यूटियां करती हैं, नहीं वो बीमारी अच्छा है, जरा गुलबर्गा सेट हैदराबाद सेट क्या करते, घर में बोल को निकलते जाओ वो पटका बन ले को गले में सब बीमार ने मन की दाल को हाथा में कड़े पवा में कड़े अट्रैक्शन लेको आपको बैठता, क्या कमाने का कहता है, ड्रेस यूनिफॉर्म कमाने का, यूं बोलते कितने बड़े बाबा नरे, कितने बड़े जुल्फान, कितना कैसा आदमी देखे तो सजदा ये वो गिर जाता, अट्रैक्शन
पकड़ लेता, हाँ मिल गया, लेके आता ऐसा होता है। अरे अच्छा हुआ तो आया, तेरे पाँव के नीचे की मट्टी लोग तुझे बर्बाद करने को बैठे रहेगा, पहले से घबरा है क्या नहीं। भी आजकल तावीज़ा हिंदुआ करती नहीं, क्या करते, जंतर मंतर तंतर दंतर, जंतर मंतर तंतर दंतर। पाँव के नीचे की मट्टी लिया, ये दंतर ले को अमल कर को, मिट्टी में पुतला बना को, कांके ले जाको गाड़ता, नहीं तो मूंग का पुतला बना को, सुइयां चुभो को पुरानी खबर में गाड़ा तो उन्हें उसे तकलीफ देता, या उसके जिस्म का कपड़ा लेता, क्या बात, बनीन की कपड़ा के टुकड़े कर को लेता, उसे जला को रात बना को अनेक चीजें से मिलाता, वो नहीं बोलो करके वो भी करता। ये जंतर मंतर तंतर तंतर, इंदर जाल महिंदर जाल, इस वक्त भी क्या है, जादू है, काली जादू है, उसका तोड़ शिफा कुरान, हर बीमारी का इलाज कुरान, शिफा और रहमत बन के आया कुरान। कैसे बीमार रहते, पानी पड़ के दम करके दे, बीमारी अंदर नहीं भाग जाती है, मगर टेस्ट करको दे। आमिर बनना तासान नहीं, कौन सी किताब देखो लिखा, सामने वाला जिन पवर लगा तो वार कराएगा तो घर का ना काटना, सोच समझ कर तावीज देना, बहुत समझ कर देना, सबको नहीं दे सकते। कुत्ता सोया जी, पत्थर मारे तो पत्थर उकाड़ता है क्या, किसे मारता, पत्थर फेंकने वाले करता, वैसा चुने, तावीज को देखता नहीं, जिन शैतान कौन दिया उसे देता, उन्हें लगा तो पत्थर ही नहीं दिया, तावीज दिया, इसे जिन है यही कहता, तावीज लिख कर दिया, इनको कंप्लीट देना क्या, आज की किताब में जे क्या लिया, मेडिकल स्टोर में दवाएं बोलना गए थे, कौन से के लिए खला मारता की जीता है क्या दिमाग, किताब में देखो तावीज लिखो बन गया, तकलीफ से देने का से देना नहीं, उन्हें जिन देखता है तावीज के की दिया वार कर रहा ही नहीं, इसका क्या कसूर, पेपर के टुकड़े का क्या कसूर, कौन बना की कौन लिखा की हो जाएंगे कथा। जब कुत्ते ने चीज समझ है कि पत्थर लगा तो पत्थर को छोड़ को पत्थर फेंकने वाले को वार कर रहा है, क्या जिन्नात ने होते अकल नहीं किया, ये कौन लिखो दिया, किसके तरफ से आया, कुत्ता हो रहा पत्थर कौन फेंके वहां जा कार्टून कर रहा है, तू क्या कि तावीज किसी जिन्नात वाले को दिया तो उनने वो तावीज को छोड़ को तावीज लिखने वाले को वार करता। बाज़ औक़ात तावीज़ा लिखने वाला बहरान, परेशान, चैन नहीं, सुकून नहीं, क्यों, वो सब बलाएं सताते रहते हैं, कैसा छेड़ा करता, सबके तरफ से दबाव में आता हूं। तावीज़ा लिखने वाले ने पागला रहती नहीं कहते, कई तो सुकून है मेंटली, जिन्नाता मोकोला सताती उसे, गंदीरू सताती उसे, रात को सुने देती नहीं, बेचैन करवाती, क्यों, तो छेड़ा ना हम आ मुकाबले कहते, ताकत रेत छेड़, चुपके चुपके के छेड़ता। इस वास्ते तावीज भी लिखना तो इजाजत होना, दुआ भी पढ़ना तो इजाजत होना, खर्चा किताबत देखो तावीज हम गामिल बना तो लाता खाता, यहां भी नुकसान वहां भी नुकसान। लिहाजा अमलियात जायज, तावीज लिखना जायज, मगर उससे पहले टेस्टिंग करना बहुत ही लाजिम है ना। जैसा मेडिकल चेकअप कराता जिस्म बीमार हुआ तो टेस्टिंग, वैसा रूहानी बीमारी परेशानी के लिए भी टेस्टिंग है। वो क्या, फाल, वो फाल कितने किस्म की, 3 किस्म की बता में, इल्म रमल, इल्म नुजूम, इल्म जफर। इल्मा के नामा भी नहीं सुने, आमिला आमिला मन को बेटी, इल्म जफर क्या है मालूम नहीं, हजरत का, इल्म रमल क्या है सुनिया नाजिश करता है, क्या मालूम क्या है, किताब बाजार में मिल रहे, लाया लिखा क्या दिया, पेट पाला, दाढ़ी छोड़ा, वो चढ़ा, रंग बिरंगे कपड़े पहन लिया, लोगों को उल्लू बनाया, अपनी तरफ रागिब कराया। ये नहीं देख रहा है, अरे एक मुसलमान को तो झूठ बोला, उसका दिल दुखा तो मेरे नबी क्या बोलेंगे, तो मेरे उम्मती का दिल दुखाया, किसी खादरी को झूठ बोला तुझे कराश होगा तो उन्हें परेशान हो गया तो वसफ़ा को क्या मुझे दिखाएगा, किसी चिश्ती को तो दिल दुखा दिया, खाजा अगर पकड़ेंगे तुझे क्या लगता मेरे चिश्ती को, तो खाम का झूठ बोला कि कराया कर तू थे। अरे कुछ अल्लाह का डर तो करो यार, अरे मुंह दिखाना क्या हमेशा रहने के लिए आया, मरने के लिए आया, ऐसा अमल क्यों करता जो अल्लाह रसूल को मुंह दिखाने के काबिल ना, यानी अमलिया करना ही है, कर, अच्छा सीख, पहले उस्ताद से सीख, मास्टर से सीख, उसके बाद मुत्तकी परहेज़गार तक़वामंद, कौन सी आयत पे क्या असर है, तावीज़ कैसा लिखना, 3 घर की तावीज़ अलग है,
4 घर की तावीज अलग है। तावीज पहले लिखती नहीं क्या करना, कोई बीमार आया तो तावीज लिखने का तरीका। अब बीमार है, क्या इसके ऊपर जादू है, जादू का बेहतरीन इलाज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अदद निकालो, 780 को 6, 780 को 6 को तकसीम करना। तकसीम करने के बाद जो अदद बचता उससे खाना भरना, ऊपर से लेते हुए भरना, नीचे से लेते हुए तरतीब से भरने के बाद तो ऐसा लाइन से देखे आते हुए 786 आना, ऐसा ऊपर से नीचे देखे आते हुए 786 आना, ऐसा क्रॉस देखाते हुए 786, ऐसा कई साथ भी तू टेस्ट करा तो 786 आया तो तावीज कट। एक में भी फर्क पड़ा तो गलत। तावीज की हकीकत बता रहा हूं मैं, लिखे निकाह हमें खीरान को लिखती नंबर लिखती नहीं, को से खाने में कौन सा नंबर आना वो चाहना, नंबर में इधर का इधर आया तो टोटल में गलत होता। 780 कुछ आना, ऊपर से नीचे देखे तो भी 780 कुछ है, ऐसा साइड में देखे तो भी 780 कुछ है, ऐसा क्रॉस भी 780 कुछ है, ऐसा क्रॉस भी, तो समझ लेना कि तावीज लिखने वाला परफेक्ट है। एक हुरूफ में भी फर्क पड़ा तो तावीज काम नहीं करती, बजाय फायदे के नुकसान। तो तावीज के लिए मशक है, ट्रेनिंग है, तजुर्बा होना है उसका। फिर हकीम चुके बनता, तमाम दस्ता लेना, घसना, जड़ी बूटी लाना, कूटना, पीसना, करना, उसके बाद क्या तो तजुर्बा मिलता। खाली रेडीमेड तावीज का किताब लेकर आमिल बना तो नहीं, मालूम हुआ। तो आमिल बनना बहुत मुश्किल है। मुत्तकी, परहेजगार, तकवा, सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, अल्लाह से दुआ करना, अल्लाह में दिन तो शफा करना, शफा करने वाला अल्लाह जो तीन नहीं। मगर इन अकड़ को तावीज़ अल्लाह में पलीते वाला, क्या ये समझी से मुझे बर्बाद करूंगा, तू कौन करता बर्बाद? अल्लाह के बंदे को, नबी की उम्मत को, गौस व ख्वाजा के बंदे तू बर्बाद करता, तू बर्बाद होगा छेड़ा तो किसी अल्लाह वाले। तो ना किसी जादूगर को डरो, न किसी आमिल कामिल को डरो। क्यों? तुम उम्मत मोहम्मदी हो, तुम गौस व ख्वाजा के चाहने वाले हो, तुम किसी से डर नहीं की जरूरत। तुम्हारा दिल पावर, कुव्वत इरादी इतनी मजबूत हो जाए, इतनी मजबूत हो जाए, अरे जा तू क्या करेगा, अल्लाह चाहे तो ये आना चाहिए, है ना। तो अमलियात की हकीकत मालूम हुई, पहले उसका छिल्ला करना, कौन सा भी अमल करने से पहले उसका छिल्ला करना। 40 दिन का छिल्ला, 3 दिन का छिल्ला, 7 दिन का छिल्ला, वो इजाजत लेना उस्ताद की, ले को वो पढ़ना, तरके हैवानात करना, जमाली करना, गोश्त, अंडा, मच्छी, दूध क्या भी नहीं खाना। सोख कर को उसका आमिल बना पीछे उसके अदद निकाल को कैसी तावीज भरना, क्या करना, जब उस्ताद सिखाना कि चिल्ला करया नहीं, मेहनत करया नहीं पहले, तो कैसा उन्हें आमिल बनता। कौन से भी तावीज देने से पहले उसका उन्हें आमिल रहना, आमिल का तो उसकी ज़कात दे रहना, उसका चिल्ला अदा करे रहना, उस्ताद की इजाजत लेकर। जैसा हमारे सिलसिले में 1.25 लाख 3 दिन में पढ़ाते, 2 अंडा मच्छी नको खाता, 1 हुरूफ को जैसा या हय्यू या कय्यूम, ये 3 दिन में 72 घंटों में 72 आवर्स के अंदर 1.25 लाख पढ़ना। पढ़े पीछे तो पढ़ाई ले बाग, तो उसके अदद निकाल को देखो, अब तो तावीज भर को दिया तो तीर मार सकता। उसी तरह कुरान की कौन सी भी आयत रख दे, विद परमिशन, इजाजत ले को उसका छिल्ला अदा कर को वो काम करे तो उसका असर आगा। मालूम आमिल बनने के लिए पहले तो वो इल्म जानना, बाद में इजाजत के साथ किसी भी आयत का, सूर्य का छिल्ला अदा करना, छिल्ला अदा करने के बाद उसके हुर्फा निकालना, हुर्फा निकालने के बाद तावीज भरना, नक्श भरना, नक्श भर को दिए तो अल्लाह ताला शफा देता। जाहिर का भी असर होता, बातिन का भी असर होता। जिस्म बीमार तो दवा खा लिया, रूह बीमार तो तावीज बन लिया, है ना। कि इंसान मजबूर है आलम शहादत में, ये असबाब की दुनिया होने की वजह से, तो हमको न तावीज का इनकार, न फलीते का इनकार, न अमलियात का इनकार, न रूहानियत का इनकार, और शर्त इस बात की है कि सही मिले। मालूम हुआ किसी को डरना नहीं, आमिल धोखा दे रही, अब पेट पालने के लिए आखिरत को बर्बाद कर लेते। दुनिया में मजे ले रही, समाज लेते हैं, करते हैं, मगर में आजकल यहाँ बना दिया। मैं ताज्जुब हूँ, बंबई में, क्या बात, बंबई में
हट्टा कट्टा रहता उन्हें, गोरा गुंटा पूरा झिब्बा गिब्बा सब माल में अंदर बैठे रहता उन्हें। और ये उसके एजेंडा रहते बड़े कुरान, ये जो यूपी बिहार की आलिमा रहती नहीं कि आपको वहां मंदिर में उन्होंने देखे थे ये मस्जिद का मुतल्ली सदर कैसा कौन कैसा क्या हालत है कैसा आहिस्ता उससे प्रश्न नमस्कार बोलता था कि परेशान दिख रही सदर साहब नहीं पढ़ा है वो क्या पढ़ा हमारे बाबा है फलानी के बॉम्बे में बड़े बड़े गलत पार हुई चलो ऐसा क्या नहीं चलो हाफिज साहब बोल रहे ना झूठ पड़ते क्या इमाम हो रहा जाता इन्हें बात कौन दरकार था। मैं बड़े गिराक खुला में देखता था और आते पहले वहाँ के असिस्टेंट ना घर में बैठते सामने चाय पानी बिस्कुट सब देते देखा क्या कहता था दूसरा मिला छिलते ही ने कहा खला रखता है बिस्कुट चाय पानी अंदर से गिना रिंग करता फोन हेलो कहाँ से बात करूँ उसका असिस्टेंट इसका राज हुआ कार्डलेस में कौन कहाँ से बात कर रहा है अमेरिका से अरे मेरे पास टाइम नहीं ना मैं पलिते लिखने का तारीख लिखने का अरे दुबई को मैं नहीं जा सकता यार मेरे मोखल को भेजता हूँ मेरे जिन्नात को भेजता हूँ तो इन्हें बोलते जाता ये हाफिज साहब से बोलते हैं सुन रहा क्या अमेरिका को टाइम नहीं है तावीजा देने को तेरी रीथिंग गिनने की तकदीर का बाद में कैसा की बोला इन बेटे तेरा मोटा तगड़ा गोरा गुंटा होना दुनिया बोलती यार क्या दुबले हकीम की दवा नहीं खाना मोटे पीर का मुरीद नहीं बना दुबला हकीम मुनी दवा खा को मोटा ही बने हमना क्या दवा देगा मोटा पीर उन्हें नफ्स को काबू में ना हमना क्या नहीं बन ठंड बट रहा था मुंबई में आप ये सब बुला लाते सरकार ये हमारे मस्जिद के मोहतमद है सेक्रेटरी साहब बहुत ने सुन्नियत के लिए बहुत काम करते हैं बहुत अच्छे रहता है हाँ क्या तुम्हें बोलेंगे तो सुन लो बोल टाइम नहीं मुझे बहुत काम करने का है बोल नहीं क्या की परेशानी बोल ऐसा काम कर इसका नाम इसकी माँ का नाम लिख को रखो जाओ देखेंगे रात में तक दिलेगा तो उसे इशारा कर रहा था कवर रखा था 5000 कवर में रखो ना करना मुन्ना रखो उन्हें बाहर तक जरा बैठ जरा बोल का तुम जल्दी करो बताते इन 50 150 यार स्वीट लिखो दे जरा मैं कर खाली मेरा भूलिया मेरी पर्सनालिटी देखो से सामने यकीन लाने के वास्ते मैं बैठ जाऊँ मैं लिखते बैठू मुझे आता है क्या मैं हाफिज हूँ तू हाफिज कुछ क्या तो लिख को दे जा रात में लिख बुला कर बोल उसकी पर्सनालिटी ना हाफिज दुबला है उन भी से मानता रहे हमारे हाफिज साहब बन को ठंग को गोरे घूमटे चपटे मस्त रहता हाल इसकी बॉडी को देख कुछ नहीं अब्बा बहुत बड़े आमिल रहेंगे कामिल करता ऐसे कहते कि बम्बई में कैसा मुश्किल है यार ईमान बचाना मुश्किल है बहुत मुश्किल से कितने की दुनिया में लोग अल्लाह तौफीक को हिदायत दे दे तो अम्बिया भी हक है ताकि जात भी मगर सोच समझ के जाओ खाली रंग बिरंगे पर्सनालिटी देखो है ना धोखा मत पड़ो पैसे बर्बाद मत करो फजूल में 1 रुपया भी तुम्हें वेस्ट करो तो अल्लाह को जवाब देना करो अल्लाह बोलता मेरी दी हुई नेमत पे तू कार्य खर्च करे तुझे मेरे को भरोसा नहीं था यार मेरे नबी को नहीं था यार मेरे गौसो ख्वाजा पे नहीं था यार बहुत एहतियात करने की जरूरत है लिहाजा मोमिनों के लिए कुरान शिफा भी है रहमत हर मुसीबत का तोड़ कुरान हर बीमारी का इलाज कुरान से बढ़ को क्या भी है नहीं अगर हम मोमिन हैं इनके बाद बच्चा वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।